بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارٹ لائن نیوز میں آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں علی احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آذربائیجان نے پاکستان کو ادار تیل اور گیس فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ آرمی چیف کا دورہ قطر، امیر اور قطری ہم منصب سے ملاقاتیں۔ فضل الرحمان فارن فنڈنگ لیتے رہے، انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، وزیر اعظم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $10 ارب پروگرام کی منظوری دے دی۔ کوئی بھی مجھ پر کرپشن ثابت کر دے تو مجھے گولی مار دی جائے، پرویز خٹک۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عاصم سلیم باجوہ۔ امریکی شہر اٹلانٹا میں دھماکہ، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پاکستان کو مطلوب انتہائی خطرناک دہشت گرد افغانستان میں ہلاک ہوا۔ مسلح افواج بھارتی جنونیت اور مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان۔ بل گیٹس نے دنیا کو ایک اور وبا سے خبردار کر دیا۔ آزادی کا مطلب جنگ ہے، چین کا تائیوان کو انتباہ۔ جی ناظرین، خبروں کی ہیڈ لائنز آپ نے سنی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اور پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ آذربائیجان نے پاکستان کو ادار تیل اور گیس فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق آرمینیا کے خلاف جنگ میں حمایت کرنے کے بعد سے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات ایک نئی بلندی کو چھو گئے ہیں۔ آذربائیجان آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ترکی کی بھرپور حمایت تقریباً 3 دہائیوں بعد نیگورنو کاراباخ کا علاقہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوا۔ اس شاندار فتح کے بعد نہ صرف آذربائیجان کی قیادت بلکہ اس کی عوام نے بھی ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ دنوں آذربائیجان کے وزیر خارجہ بھی خصوصی دورے پر پاکستان آئے تھے۔ اس دوران دونوں ممالک کی قیادت نے دو طرفہ سفارتی، تجارتی و دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ توانائی کے وسائل سے مالا مال آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کو بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے۔ برادر اسلامی ملک کی سرکاری توانائی کمپنی سوکر ٹریڈنگ پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ ادار پر تیل اور گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دورہ قطر کے دوران اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات البحر پیلس میں ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات زیر غور آئے۔ ملاقات میں باہمی تعلقات کو بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج قطر کے ہم منصب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے افواج کے پیشہ ورانہ امور اور باہمی دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان باہر سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں سینٹ انتخابات سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل براڈ شیٹ اور محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں اوقاف کی زمینوں پر قبضہ افراد کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ نون لیگ کی قیادت لاہور کے قبضہ مافیا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید معزز اور اچھی شہرت والے جج ہیں اور وہی براڈ شیٹ کی تحقیقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان باہر سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، انہیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا۔ سیاست عبادت ہے، ظالموں اور چوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام نہیں۔ سینٹ انتخابات میں بھی شفافیت یقینی بنائیں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $10 ارب پروگرام کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو یہ قرضہ 2021 سے 2025 کے درمیان 5 سالہ پروگرام کے تحت مختلف مراحل میں فراہم کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بیرونی ادائیگیوں کے بوجھ تلے دبے پاکستان کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے۔
वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी मुझ पर करप्शन साबित कर दे तो मुझे गोली मार दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा, मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी मुझ पर करप्शन साबित कर दे तो मुझे गोलियां मार दे। परवेज खटक के घर हराम का पैसा नहीं जाता, मुझ पर इल्जामात लगाने वाले खुद करप्शन में मलूस हैं। पीडीएम की सूरत तमाम चोर इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे ही मरेंगे। सेनेट इलेक्शन में हमारे नंबर गेम्स मुकम्मल हैं, हम ना कभी पीडीएम के पास गए और ना जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पेशावर बीआरटी के हवाले से मुझ पर बहुत तनकीद होती रही। बीआरटी का पंजाब के मेट्रो से मुकाबला किया जाए तो बीआरटी बैनुल अक़वामी मयार की बस सर्विस है। बीआरटी में फीडर रूट्स भी बनाए गए हैं जिसकी वजह से उसकी तकमील की मुद्दत और लागत में इजाफा हुआ। बीआरटी मंसूबे की कामयाबी से अपोजिशन के मुंह बंद हो गए हैं। परवेज खटक का कहना था कि इमरान खान ने चोरों को एहतसाब के दायरे में लाने की बात की है और उनका एहतसाब होकर ही रहेगा। ये सब मिलकर भी अपनी करप्शन नहीं बचा सकते। अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा सीपेक पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। एपीपी के मुताबिक इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबाह से मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपेक मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है और वो बहुत जल्द लाहौर चैम्बर का दौरा करके गवादर में कारोबारी मौके के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपेक के मंसूबों पर काम तेजी से जारी और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कहा कि इस मंसूबे से बाहमी रवाबत मुस्तहकम और तिजारत व सरमायाकारी के बेशुमार मौके पैदा होंगे, जिससे न सिर्फ दोनों ममालिक को फायदा होगा बल्कि ये दीगर इलाकाई ममालिक से भी मुंसलिक होंगे। लाहौर चैम्बर के सदर तारिक मिसबाह ने कहा कि ये अजीम मंसूबा शुरू करने पर दोनों ममालिक खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इस मंसूबे में दोनों ममालिक की कंपनी को यकसा मौके फराहम किया जाए ताकि पाकिस्तान की सनत भी उससे फायदा उठा सके। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में खौफनाक धमाके के बायस 6 अफराद जा बहक हो गए जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी मीडिया जराये के मुताबिक प्राइम पाक नामी पोल्ट्री फार्म में नाइट्रोजन सिलेंडर फटने के बायस धमाका हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद जा बहक हो गए। इब्तिदाई तौर पर 5 अफराद जा बहक हुए थे, ताहम 10 जख्मियों में से एक शदीद जख्मी शख्स के मरने के बाद जा बहक अफराद की तादाद 6 हो गई जबकि 9 जख्मी अस्पताल में जेरी इलाज हैं। बताया गया है कि धमाका केमिकल मवाद फटने के बायस हुआ। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में मकामी पुलिस का कहना था कि धमाके के बायस इर्द गिर्द के इलाके को सील कर दिया गया है जबकि धमाके की जानिब जाने वाली शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को मतलूब कलदम तंजीम लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगल बाग आफरीदी अफगानिस्तान में बम धमाके में हलाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में बारूदी सुरंग के धमाके में मंगल बाग और उसके 3 साथी मारे गए हैं। गरहार के गवर्नर ने तस्दीक की कि लश्कर इस्लाम का सरबराह सुरंग बम धमाके में हलाक हो गया है। वाज़ेह रहे कि कमांडर मंगल बाग आफरीदी उसका ग्रुप कलदम तहरीक तालिबान टीटीपी पाकिस्तान से वाबस्ता रहा है। इससे कबल भी मंगल बाग की हलाकत की इतलात सामने आई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने कलदम तंजीम लश्कर इस्लाम के सरबराह मंगल बाग और उनके 4 साथियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में मावनत पर लाखों रुपए के इनामात का ऐलान किया था। हुकूमत ने मंगल बाग की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। पाकिस्तान का कहना है कि भारत दहशतगर्दी फैलाकर खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय जनूनियत और मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिर हफीज चौधरी का कहना था कि भारत में मुसलमानों समेत कोई अकलियत महफूज नहीं। मोदी सरकार की जानिब से किसानों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है।
भारतीय पंजाब में इस वक्त किसानों की तहरीक चल रही है। पूरी दुनिया को भारत में इंसानी हकूक की बड़े पैमाने पर पामालियों का इदराक है। भारत का गैर जमहूरी और दहशतगर्दी का चेहरा बेनकाब हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत दहशतगर्दी फैला रहा है लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारतीय क़ियादत इंतहा पसंद अनासर को हवा देकर इलेक्शन जीती है। भारत खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान झूठ के बजाय सच के साथ भारतीय प्रोपेगंडे का जवाब देगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय जनूनियत और मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि दुनिया अगली वबा के लिए तैयार रहे और ये तैयारी जंगी बुनियादों पर होनी चाहिए। बिल गेट्स और उनकी अहलिया की जानिब से जारी करदा सालाना पैगाम में कहा गया है कि आइंदा वबा की सूरत में हमारी तैयारी न हुई तो हम उसके नताइज के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। जब तक हम इस हवाले से इकदाम नहीं करते एक और वबा का खतरा हमारे सर पर मंडला रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस होने वाले नुकसानात से आइंदा वबाओं में महफूज रहने के लिए हमें जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। मुस्तकबिल में वबाओं को रोकने के लिए अरबों डॉलर सालाना की सरमायाकारी की जरूरत है। याद रहे कि कोरोना वायरस की वबा की हमें 28 खरब डॉलर कीमत अदा करना पड़ी है। अपने पैगाम में बिल गेट्स और उनकी अहलिया ने दुनिया पर जोर दिया है कि कर्बों के नुकसान से बचने के लिए पहले ही से अरबों रुपए की सरमायाकारी करना बेहतर है। इसके लिए बीमारियों की तशखीस और वैक्सीन की तैयारी के टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ आलमी तौर पर वबा के खतरे से खबरदार करने के लिए बाकायदा निजाम का कयाम भी जरूरी है। ये काम कई वबाओं के बावजूद अब तक नहीं किया जा सका है। वाज़ेह रहे कि बिल गेट्स ने इससे कबल 2015 में भी एक आलमी वबा का खदशा जाहिर किया था। चीन ने इंतबाही अंदाज में ताइवान को कहा है कि आग से खेलने वाले जल जाएंगे, आजादी का मतलब हमारे साथ जंग है। अरब मीडिया अल जजीरा के मुताबिक चीन ने ताइवान के करीब फौजी मशकें शुरू की हैं जिनको आजादी का मतलब जंग का नाम दिया गया है और उन मशकों के साथ ही ताइवान को खबरदार करते हुए कहा है कि चीनी अफवाज गैर मुल्की इश्तियाल अंगेजी और मुदाखलत के जवाब में फौजी मशकें कर रही हैं। तर्जुमान चीनी वजारत दिफा ने मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि ताइवान चीन का अटूट अंग है, जबकि चीनी अफवाज की सरगर्मियां सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर इंतहाई अहम कदम और मुल्की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये ताइवान में बैरूनी मुदाखलत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाली ताइवान की आजादी की हामी कुव्वतों को वाज़े जवाब भी है। वजारत दिफा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि ताइवान की आजादी के हामी अनासर को खबरदार करना चाहते हैं कि ताइवान की आजादी का मतलब जंग है, लिहाजा जो लोग आग से खेल रहे हैं वो खुद जल जाएंगे।